बहुत नर्वस होके गई थी, बट शी वॉज फ्रेंड्स विद एवरी वन. आई लर्न दैट वेरी वेल. Just pat my back and say that yes, I did it. Be very very grateful for it. Hey guys, welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. This is the last time for 2024 that I'm saying this, because ये 2024 का last long format video है on my channel and I am super excited to film this video, because ऐसा कोई video ना मैंने पहले किया है अपने channel पे, but it is very more exciting. I'm sure you guys have read the thumbnail. This is 24 lessons I learned in 2024. Now if you guys follow my channel since a time, you all know that last year I posted this video where I told her about the 5 habits that I inculcated in 2023. ये वीडियो उससे सिमिलर है, but it's not exactly like that video. That video was about the habits. This video is about the lessons as in ये activities नहीं है जो मैं करती हूँ. These are my experiences that I went through, और उन experiences से मैं क्या सीखी हूँ ना, ये वीडियो उस बारे में होने वाला है. And सीखी हूँ as in not like I'm very pro of it, but I learned and I grasped those concepts through these experiences. Basically मैं आपको अपने लाइफ के 2024 के ऐसे 24 एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ जिनसे मुझे थोड़ा बहुत ही सही पर कुछ सीखने को मिला है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड कंटिन्यू वॉचिंग. बट बिफोर वी मूव अहेड, मैंने ये लास्ट ईयर के वीडियो में भी कहा था, इस साल भी मैं डिस्क्लेमर देने वाली हूँ. दिस वीडियो इज़ नॉट टू बोस्ट अबाउट anything that I've achieved or just fascinating things. In fact this video is an eye opener कि लाइफ में गुड थिंग्स और बैड थिंग्स दोनों ही होती है, पर दोनों से ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो मैं बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. तो अगर आप लोगों को वो सुनना है, थोड़े और मोटिवेशन के साथ 2025 को एंटर करना है विथ मी, देन कंटिन्यू वॉचिंग. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले we can jump straight away. I'm all pretty dressed up and dolled up for the New Year's. This is a very beautiful one piece that I've worn. You must have seen this one piece on me previously. ये मेरा 2023 का birthday dress था, and I have done this very pretty glittery smoky eye look. I'm getting all the New Year feels. But anyways, we're gonna just focus on this video. इस वीडियो में ना नाम मैं आपके साथ get ready with me आने वाली हूँ. Nor am I gonna do a makeup. No, I am only going to sit and chit chat. It is gonna be a long video, so आप लोगों को पूरा देखना है. So get your snacks and you can just binge watch on this like a Netflix episode, because मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ. तो शुरू करते हैं with the beginning of 2024. जहाँ से मेरे लिए 2024 शुरू हुआ. The first lesson for me says, by the way, I have written everything in this book because it's literally impossible for me to have all my thoughts here and then directly say it in the video. जिस तरह मैंने उसे फील किया है उस तरीके से मैंने इसे इस बुक में लिखा है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकूँ. तो the first lesson that I came across in 2024 was work hard. That's it. ये 2 वर्ड्स में ना ऑनेस्टली बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है. For me 2024 began with nothing special. Okay, it was very basic, in fact very muted, because मेरे मार्च में बोर्ड्स थे, not even March, sorry, Feb में बोर्ड्स थे. I was in IGCSE बोर्ड, तो मेरे लिए बोर्ड स्टार्ट हुए from 6th of February. So January was like a core period for me where yeah I have to work hard and मतलब बहुत मुझे मेहनत करनी है. तो इसके लिए आई वॉज बिजी विद माई स्टडीज़ एंड आई हैड वेरी हेक्टिक टाइम. मेरे प्रीलिम्स चल रहे थे, मैं क्लासेस अटेंड कर रही थी, मैं घर पे स्टडी कर रही थी. बट समथिंग दैट आई रियलाइज्ड इज़ यू हैव टू वर्क हार्ड. कुछ पाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देयर इज़ नो अदर डायरेक्शन यू हैव. ओके, सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ टू वर्क हार्ड, डू दैट. देन ऑन 18th January a motivator sort of thing happened which motivated me to work more hard for my Feb boards. Again I did post a shorts on that. That is I got my ON boards के marks. बेसिकली हम लोग के IGCSE में हिंदी और GP ग्लोबल
एक्सपेक्टेड। तो ये 2 सब्जेक्ट के बोर्ड्स अक्टूबर में होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जैन में आए थे। एंड आफ्टर सीइंग दोज रिजल्ट्स इन माई हैंड, आई टोल्ड माई सेल्फ दिस वन थिंग, sacrifice the good for better. And when I say this, I literally mean it. Like when I saw those results, I realized कि ठीक है यार, कभी पार्टी करना इज़ नॉट नेसेसरी, हर बार अपने आप को एक चिल टाइम देना इज़ नॉट नेसेसरी, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव a relaxed period always. Okay, sometimes it's okay to work hard, to work late nights, to have irregular sleep timings, to eat on unusual times, and just push yourself so hard for a little bit so that you get the better later. फिर उसके बाद हुआ बोर्ड्स मेरे ख़त्म हो गए, एंड देन इट वॉज द डे ऑफ माई फेयरवेल की आज मैं बहुत नर्वस होके गई थी, बट जितनी नर्वसनेस के साथ मैं गई थी ना, ऑनेस्टली मैं उतनी ही खुश थी और एक स्माइलिंग फेस के साथ मैं बाहर आई अपने स्कूल से. एंड व्हेन आई केम होम, आई स्लेप्ट ऑन द बेड, आई थॉट ऑफ ऑल दैट हैपेंड ऑन फेयरवेल. दिस थिंग केम ऑन माई माइंड दैट don't restrict your social life. I know that it is very difficult for some people to socialize. Like if you're someone like me, an introvert, it is very very difficult. You will relate with me. सिर्फ जाके hi, hello, can I join your group is also a difficult task. Like on the day of my farewell, मैं nervous क्यों थी honestly पता है, because मैं कभी ऐसे parties में गई नहीं हूँ. ठीक है, मेरा ग्रुप उतना बड़ा नहीं था. वी वर जस्ट ग्रुप ऑफ 3 people and to actually party, to like dance, you have to go and play games in the farewell. तो उन सब चीज़ों के लिए मैं नर्वस थी. बट ऑन दैट डे मुझे क्या हो गया था, आई प्लेड गेम्स, आई डांस विद अ फ्रिकिंग ग्रुप ऑफ 10 people, गर्ल्स, बॉयज़, एवरीवन. आई प्लेड विद माई टीचर्स. फिर मुझे आपको ये रियलाइज हुआ दैट समटाइम्स डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सोशल लाइफ यार. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही जाके लोगों में इन्वॉल्व हो जाओ, वो आगे आएगा एक्चुअली. मैं थोड़े स्पॉटर्स दे रही हूँ, बट दैट थिंग विल कम. आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, आई टेल यू ऑल व्हाई. बट डोंट रिस्ट्रिक्ट इट सो मच कि आप अकेले रह गए हो, एज इफ यू लिविंग इन अ जंगल एंड यू डोंट हैव एनीवन विथ यू. इतना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो. गो सोशलाइज, मीट पीपल, यू आर अ ह्यूमन एंड यू वोंट बी सेटिस्फाइड अंटिल यू हैव पीपल अराउंड यू. तो अभी मैंने एक पॉइंट बात की ना, इसका एक एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी पॉइंट अभी मैं बोलने जा रही हूँ, बट विद अ वैलिड रीज़न. तो मेरा फेयरवेल हुआ, उसके इमीडिएटली एक हफ्ते बाद मेरा सोलो ट्रिप था टू उदयपुर. एंड दिस सोलो ट्रिप इज़ बेसिकली माई फेयरवेल ट्रिप विथ माई प्रिंसिपल. तो तब मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद दिस लेसन इज़ लाइक, मतलब मेरे माइंड में बैठ गया है. दिस डिड नॉट कम टू माई ब्लॉग्स बिकॉज हम लोग को फ़ोन लेके जाना भी अलाउड नहीं था, एंड प्लस देयर वाज नो स्पेसिफिक रीज़न आई वांटेड टू शेयर दिस. इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट. सो I had, it was a 6 days trip. 5 days तक I was with my friend. Then 5th night something happened, like cannot be told, but something happened that we broke our friendship. And trust me, we as in हम दोनों 2 साल से friends थे, 9th and 10th. और 10th के ट्रिप पे 6 दिन में 5 दिन हम लोग साथ में थे. आखिरी रात I don't know what happened. I mean, I know what happened, but I cannot tell you that those feelings. I don't know what happened. We instantly broke up. Our friendship broke up. Like, honestly, I feel that girl friendships breakup are even more difficult than an actual breakup, couple breakup. तो उस breakup के बाद one thing that instantly came to my mind उसी रात was draw a boundary with your relationships. Somewhere I feel I was so attached with her, and attached as in मुझे ऐसा लगता था मैं उसके लिए हूँ और वो मेरे लिए है. मेरे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे उस ग्रुप में और उसके उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, ऐसा मुझे लगता था. बट शी वॉज फ्रेंड्स विथ एवरी वन एंड आई रिस्ट्रिक्टेड माई फ्रेंडशिप बिकॉज आई वाज लाइक अरे ये तो है ना मेरे लिए. एंड दैट नाइट व्हेन शी ब्रोक अप आई हैड नो वन एंड शी हैड एवरीबॉडी. ऐसा नहीं है कि शी वॉज नॉट वॉन्टिंग मी, शी वॉज ऑल्सो वेरी गिल्टी ऑफ लूजिंग मी. इट वॉज अ वेरी टफ सिचुएशन. बट फिर भी आई डिड रियलाइज कि यार मैं नहीं सही, उसके पास बैकअप लोग थे, मेरे पास कोई नहीं था.
So that just instantly told me that draw a boundary with your relationships. And when I say this, right, this is the point of contrary with the previous point and the fourth point, दैट सोशलाइज करो बट उतना जितना आपके लिए काफ़ी हो, उससे ज़्यादा डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन समवन कि एक दिन अगर वो चला गया तो यू हैव नोबडी विथ यू। इतनी डिपेंडेंसी ना लाइफ में सिर्फ पेरेंट्स पे ही रखना, ये चीज़ मुझे उसी रात समझ आ गई। उस दिन से whenever I meet someone, I'm like, okay, we are friends and we are just friends, like literally, उसके आगे कुछ नहीं। बिकॉज मुझे किसी पे उतना डिपेंडेंट होना ही नहीं है, किसी एक इंसान पे उतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि वो चला गया तो कोई नहीं रहेगा। और इसी के साथ फिर मैंने ये बात भी डिस्कस की, टेक द रिस्क टू नो योर सेल्फ। ठीक है, अभी ऑनेस्टली सोलो ट्रिप ऑल्सो वॉजंट वेरी ईजी। ठीक है, अपने आप को कन्विंस करना कि मैं 6 दिन अपने पेरेंट्स के साथ रह पाऊँगी, नॉट ईजी एट ऑल। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो, ट्रिप भी उतना डिफ़िकल्ट गया ही नहीं जितना ट्रिप के पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में चला गया। इवन माई पेरेंट्स वो स्केप्टिकल अबाउट इट, इवन आई वाज स्केप्टिकल, बिकॉज आज तक मैं अपने नानी नाना के अलावा किसी के साथ इतना दिन रही नहीं हुई, तो अकेले। वी वर लाइक, मैंने तो वो ट्रिप वही बोल के किया था कि सी दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट राइड, आगे आई विल टेक सोलो ट्रिप्स, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट राइड एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। वो रिस्क मैंने लिया था एंड इट वॉज टचवर्ड सो गुड कि आई वॉन्ट टू लर्न सो मच इन दैट ट्रिप। यू नो, बेसिक से बेसिक चीज़ जैसे अपना बैग कैसे पैक करते हैं वो भी मैंने उस ट्रिप में सीखा है। बिकॉज टू यू नो हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई लर्न दैट वेरी वेल। ट्रेन में, हम लोग ट्रेन में गए थे एक्चुअली उदयपुर, तो ट्रेन में अपने आप को कैसे संभालने का जनरली हमारे दिमाग में नहीं आता है, बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आगे बढ़ते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ माई लाइफ विच इज़ लाइक 2024 में हुआ, तो भी 2024 के लिस्ट में वो ऐड हो गया है एंड दैट इज़ न्यू होम एंड न्यू होम। पहला पॉइंट है एवरीथिंग डजंट ऑलवेज गो वेल, और जैसा दे से एवरीथिंग डजंट ऑलवेज गो हाउ इट इज़ प्लान्ड, एंड इट्स ट्रू। बोलने में जब एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू संभालने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यू ऑल हैव सीन हमारा अनमोल आमन सीरीज़ 10 एपिसोड्स एंड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग ऑफ द हाउस इज़ कवर्ड इन दैट वीडियो, सो यू ऑल नो एवरीथिंग डिड नॉट एक्चुअली गो एज प्लान्ड। मेनली गड़बड़ भी बहुत हुई है हमारे एंड से, वर्कर्स के एंड से ज़्यादा। एक्चुअली हमने तो उतनी गड़बड़ शायद की भी नहीं हमारे एंड से, वी वर जस्ट कंसर्न फॉर द टाइम, बट या देयर वर टू मेनी थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग आई फील इन द घर मेकिंग। अनफॉर्चुनेटली वो ठीक भी हो गया, ऐसा नहीं है, हमने ठीक कर दिया। दैट थिंग के थिंग्स डोंट ऑलवेज गो प्लान्ड, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता जैसा हमने सोचा है। इसी से रिलेटेड हमारा सेकेंड पॉइंट है, आई मीन दिस इज आवर 7th पॉइंट, गुड थिंग्स टेक टाइम एंड they do, like they really do। घर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। I don't know what, we started our house cup making in May, no, in March, we finished in September 1st या 2nd week somewhere। लिटरली आई वॉज लाइक कब बनेगा ये घर, कभी वर्कर रेडी नहीं है, कभी उनके पास सामान नहीं है, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। बस लाइक व्हेन विल इट गेट ओवर, व्हेन आफ्टर द होम बीइंग डन मेरी सारी कंप्लेंट्स दूर हो गई थी इंस्टेंटली। मैं वो सारी प्रॉब्लम, वो इतनी देरी जो हुई ना, सब कुछ भूल गई जस्ट टू सी द एंड रिजल्ट दैट वाज सो ब्यूटिफुल। सो या, गुड थिंग्स डू टेक टाइम। और इसी के साथ हमारा 8th पॉइंट अगेन कनेक्टेड टू द सेम थिंग इज़ वेलकमिंग न्यू चेंजेस। आई स्पेंड 15 years इन माई फर्स्ट होम, तो इस घर को 15 साल के बाद एक सा नया चांस देने जैसा हो गया है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी ऑनेस्टली टू एक्सेप्ट द चेंज। ठीक है, मतलब इसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं उसको भुलाने के लिए रेडी नहीं हूँ। सोचो यार, जहाँ मेरा चाइल्डहुड भी था, 15 years, मेरी पूरी स्कूलिंग वहाँ कंप्लीट की मैंने। आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई फ्रेंड्स इन दैट एरिया। आई डिड रियलाइज कि हाँ, वेल वी हैव टू वेलकम न्यू चेंजेस
बिकॉज वी हैव चेंज्ड इट फॉर द बेटर, राइट। तो अभी उस अच्छी चीज़ के लिए हमें उस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा, उससे डील करना ही होगा। और अब आता है 23rd May 2024, वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ 2024, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डे। मतलब 2024 में लिस्ट नहीं कर सकती, उतने इंपॉर्टेंट डेज हैं। बट 23rd May was another very important day. It was the day of my boards result basically, जो बोर्ड मैंने फरवरी में दिए थे उसके रिजल्ट आए थे। I scored 92%. For those who all don't know and for those who all don't watch my videos, please go and watch shorts पे मैंने डाला था। I scored 92%. I was very happy. बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूँ कि 92 इज़ बेस्ट। नहीं, उस दिन भी आई वॉज लाइक कि कहीं तो मुझसे कमी रह गई। लाइक आई गॉट द मार्कशीट, आई वॉज लाइक 92%, आई मेड इट। लाइक 90 से ऊपर जाना वॉज माई गोल, तो आई मेड इट, मैंने उसके लिए किया। देन थ्रू आउट माई वे बैक होम, और वो पूरा दिन मैंने बस यही सोचा कि अरे यार थोड़ा और आ सकता था, कुछ तो कम हो गया, ये तो गड़बड़ ही हुआ, वो गड़बड़ हुआ रहेगा, उसकी वजह से फालतू के मेरा परसेंटेज चला गया। ये पूरा दिन सोच के इतना आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो रात को आई रियलाइज एंड आई सेड दिस टू माई सेल्फ, ये सारे एक्चुअली वो चीज़ें हैं यार जो मैंने अपने आप से बोलनी है। दीज आर माई ट्रू वर्ड्स। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू ग्रोथ। कि ऐसा नहीं है कि आई शुडेंट हैव अ रिग्रेट ऑन माई सेल्फ, आई शुड, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझसे जो गलती हुई है उसी की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हुआ, और भी बेटर आ सकता था। तो आई शुड वर्क हार्ड, बट एक्सेप्टेंस एट टाइम्स शुड बी डन। कि हाँ भाई मेरे को 92 आया, मुझे उसमें भी खुश रहना चाहिए और उसको मोटिवेटर बनाना चाहिए फॉर मी टू स्कोर बेटर इन माई फ्यूचर ग्रेड्स। जस्ट पैट माई बैक एंड से दैट येस आई डिड इट, 92 मेरी मेहनत से आया है, दैट गुड आई डिड इट। वो चीज़ मैं अपने आप को उस रात बोल रही थी। एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन द नेक्स्ट डे बिकॉज 24th May इज़ माई बर्थडे गाइज। तो वो भी एक बहुत स्पेशल फीलिंग थी। और इसी के साथ रिलेट होता है हमारा 10th पॉइंट, दैट इज़ रिमाइंड टू लव योर सेल्फ ऑन माई बर्थडेज एवरी ईयर। when I get ready for my birthday eve, which is like शाम को जब हम सेलिब्रेशन करते हैं ना, केक कटिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए जब मैं रेडी होती हूँ एवरी ईयर आई सिट इन द मिरर और मैं आराम से 1 घंटा लेती हूँ, रेडी होती हूँ। एंड द ओनली थिंग आई डू इज आई लुक एट माई सेल्फ, आई अडोर माई सेल्फ, आई टेल माई सेल्फ हाउ ब्यूटिफुल यू आर। Wow, I made it to 13 years of my life, 14 years of my life, 15, this year 16 years of my life, I made it. Basically I say affirmations on that day because it's a very special day। उस दिन मैं पैदा हुई थी तो मैं उस दिन ट्रूली अपने आप को सेलिब्रेट करती हूँ। और नेक्स्ट थिंग इज दिस वाज इन मे, देन इमीडिएटली इन जून वी वेंट ऑन आवर इंटरनेशनल ट्रिप टू बाली। वो ट्रिप मेरे पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट था फॉर माई बर्थडे एंड फॉर माई बोर्ड्स रिजल्ट। मेरा पॉइंट है ट्रैवल इज थेरेपी। Honestly, that travel was so therapeutic, especially one point in Malaysia where we were on the top of Twin Towers and the cafe, we got a coffee and I was sitting by the bar stool and बाहर से मेरे को व्यू दिख रहा है। Okay, we were on 43rd or 82nd floor, I don't properly remember. I have this cup of coffee of mine, I'm drinking it, I'm looking at the view and that was so relaxing, like mentally, physically, emotionally I felt so therapeutic। like उससे मुझे समझ आया कि हाँ यार ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को करती रहनी चाहिए। It boosted so much dopamine in me at that moment. So good. But if I'm talking about dopamine, it is definitely adrenaline for me, which is my next point, point number 12. We are halfway there. That says डर के आगे जीत है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिक है, मुझे पता है, बट वन एक्सपीरियंस इन बाली एक्चुअली मेड मी फेल्ट लाइक कि कभी कभार ट्राई कि you close your eyes and you overcome, that you attempt the fear that you have and eventually it will overcome। बाली का जो स्विंग एक्सपीरियंस है ना, वो जितना हैप्पी को दिखता है, ऑल ब्लूज जो दिखता है ना इंटरनेट पे, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। आपको बेस्ट फ़ोटो वीडियो लेने के लिए ना हाईएस्ट स्पॉट का स्विंग लेना पड़ेगा और वो स्विंग इतना रिस्की है।
not like physically risky. They will tie harness, there are two people around you to swing, बट आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बिकॉज यू विल गो सो अप इन द एयर. तो समझ में मैं इतना डरती हूँ झूले से, बट आई वॉज लाइक आई रियली वांट टू गेट दैट इंस्टाग्राम फोटो. हाउ डू आई गेट दैट अगर मैं वो टॉप स्विंग पे नहीं जाऊँगी तो. मैं बहुत डर रही थी. विद लास्ट 10 मिनट्स आई वॉज लाइक आज अगर मैंने नहीं किया ना तो मेरे को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बिकॉज बाली इज़ वेरी फेमस फॉर दैट स्विंग एंड आई वॉज लाइक नो आई वॉन्ट टू डू दैट. I literally said कि नहीं मैं कर रही हूँ and I did it. I closed my eyes and I was like, okay Sarakshi, you'll be able to do this, you'll be able to do this. He put me so up in the air, I was having so much adrenaline rush, but that was only for 5 seconds. उसके बाद इतना मज़ा किया है ना मैंने उस स्विंग पे. was going so up in the air and I was like oh my god I'm flying in the sky. वैसी वाली फीलिंग आ रही थी. It was so good. तो दैट अल्टीमेटली क्लेम्स कि भाई डर के आगे जीत है. यू फेस दैट फियर वंस एंड मे बी यू डोंट नो, उसके बाद यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट फियर. नेक्स्ट इज अ वेरी बेसिक कोट दैट इज़ लाइक वेरी स्मॉल. इसमें तो मेरे पास ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ब्रैकेट इवन अ वुमन. Because after I came from Bali, there were like too many videos and everything, and I was really focused on my content creation. तो मैं बहुत सारे उसको at that time I was discovering a lot of new content creation methods. तो I was like कि मैं जितना practice कर रही हूँ ना उतना I am getting better at this. Literally I discovered so many new editing skills कि हाँ मतलब मुझे समझ में आ रहा कि yes practice makes a man perfect, and I was gaining my skills to just doing that again and again. That is just it, but I wanted to count it in this. Is family time is always a priority and should always be a priority. So in July somewhere me and my family, like my entire family, even my nani nana, we went on a trip to Bordi. वहाँ पे ना मेरे cousin grandfather का bungalow है. And after a really long time I felt like we spent so much time together. पूरी फैमिली, मैं मेरे मॉम डैड तो हर वक्त साथ में रहते ही हैं, बट हम लोग ने एज अ फैमिली इतने टाइम बाद टाइम स्पेंड किया तो समझ आया कि हाँ यार वो भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सुख है जो टाइम टू टाइम हमें एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए. बिकॉज सी नोबडी सीन द फ्यूचर. ओके, तो जब मौका मिले तब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो जितना हो सके उतना. तो बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट है trust time and God, because this was in July last week, July 2nd या last week. we were waiting for college admissions. अभी college admissions का ना ऐसा है guys, मैं बताती हूँ कि लिस्ट लगता है as per your merit percentage. तो अगर आपका परसेंटेज उस मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होता है only then you get an admission, and we did have a few टॉप कॉलेजेस इन आर रैंक कि भाई इसमें चाहिए नहीं तो इसमें चाहिए, ऐसा टॉप 3 बना के रखा था. सो वी वर वेरी स्केर्ड एंड नर्वस कि क्या मेरा परसेंटेज उस लिस्ट में आएगा. विल आई बी एबल टू क्वालिफाई इन द मेरिट लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज. बट देन इन जुलाई समवेयर, आई डोंट रिमेंबर डेट्स, मुझे मिल गया उस कॉलेज में. सब कुछ मैंने लाइफ अपडेट में बताया है गाइस. फॉर यू टू नो द स्टोरी प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लाइफ अपडेट. मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लेसन्स बोल रही हूँ उस एक्सपीरियंस में, स्टोरी नहीं बता सकती वरना वीडियो कुछ भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रिडंडेंट हो जाएगी चीज़ें. तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट येस एट टाइम्स वी शुड जस्ट ट्रस्ट टाइम एंड गॉड. वक्त पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो एंड थिंग्स विल गो वेल. बिकॉज अच्छी चीज़ें थोड़ी टाइम में, गुड थिंग्स टेक टाइम. लिटरली मैंने ऊपर वही बोला, तो हम भी अपने आप को वही बोल रहे थे. एंड रियली आई डिड गेट एडमिशन इन द कॉलेज दैट आई वाज वांटिंग. तो कभी कभार सिर्फ वक्त पे छोड़ दो बिकॉज उस वक्त कुछ नहीं कर सकते. वी हैव सबमिटेड आवर एप्लीकेशन, वी हैव लिस्टेड द टॉप 3 दैट वी एक्चुअली विश्ड फॉर. अभी बस टाइम को अपना जादू चलाना है और भगवान को अपना जादू चलाना है एंड एवरीथिंग विल गो वेल. दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन. और फिर उसी से रिलेट होता है डील विथ फर्स्ट टाइम नर्वसनेस. नाउ दिस इज़ अ वेरी पॉइंट रिलेटेड विथ सोशलाइजिंग. उसी से ये पॉइंट थोड़ा बहुत रिलेटेड है. फर्स्ट टाइम और नर्वसनेस भी बहुत होता है फॉर इंट्रोवर्ट्स लाइक मी, एंड ये चीज़ तो आई थिंक अक्रॉस एवरीबडी कॉमन है. जब भी कोई चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें नर्वस तो फील होता ही है. लाइक फॉर मी फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन लोकल ट्रेन, first day of college, first time sitting in a class of 120 people, meeting
प्रोफेसर्स एंड नॉट गोइंग इन सोबो की तो बस नाम सुनी, शक्ल नहीं देखी है कभी, अभी वहाँ पे जाना टू मच ऑफ फर्स्ट टाइम। बट सो आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई वॉज वेरी नर्वस, स्केर्ड नहीं बोल सकते, नर्वस, एंग्जाइटी हो रही थी। बट जैसे जैसे वो दिन जा रहे थे, जैसे जैसे आई वाज गेटिंग यूज्ड टू माय लाइफस्टाइल, आई रियलाइज कि ठीक है भाई, वो भी ओवरकम कर सकते हैं, थोड़ा गेट यूज्ड टू डूइंग द सेम थिंग, व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन यू विल गेट यूज्ड टू दैट, तो उतना बाद में नर्वसनेस नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि एक बार में करने से मैं नहीं बोल सकती कि अब मेरे को फर्स्ट टाइम नर्वसनेस नहीं होगी, वो तो होगी ही हमेशा, बट थोड़ा अपने को कंट्रोल रख सकते हैं कि हाँ यार कर लूँगी मैं, वो थोड़ा और कंट्रोल आ सकता है अपने पे वंस एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स। अगला पॉइंट भी इसी के कनेक्शन में है इंसिडेंट्स वाइज, बट पॉइंट बहुत अलग है, लेसन बहुत अलग है, विच सेज देयर इज़ नो एज टू लर्न। सो फॉर मी दिस ईयर बिकॉज ऑफ माई कॉलेज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई लर्न ट्रैवलिंग विथ लोकल ट्रेन्स। जब मैं पहली बार गई ना लोकल ट्रेन में, पूरा एक हफ्ता ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, एम्बेरस्ड, एक्चुअली गिल्टी नहीं, एम्बेरस्ड फील हो रहा था मुझे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक मैं 16 ईयर्स की हो गई हूँ और मुझे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना नहीं आता। एवरीबडी वॉज लुकिंग, पहला 2 दिन तो आई फील लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट मी एंड सेइंग ये लड़की ऐसा क्या बिहेव कर रही है, एंड देयर वर सो मेनी न्यू थिंग्स यार, मतलब 4th सीट क्या होता है मालूम, स्टेशन के नाम मालूम नहीं, फर्स्ट क्लास डब्बा कहाँ आता है मालूम नहीं, उतरना कहाँ से है पता नहीं, लोग आके कौन से स्टेशन पर उतर रहे हो वो पूछते हैं, खड़े कैसे होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, वेंडर्स आते हैं, देयर इज़ लिटरली सो मच, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। ऑनेस्टली मुंबई कर होके वो चीज़ मुझे थी कि मुंबई कर होके मेरे को लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने क्यों नहीं आता। दैट क्वेश्चन रिमेन विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल आई फाइनली रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ नहीं है। In fact, it is a thing I should be very happy of कि I am so privileged in life कि till 16 years of my life मेरे पास गाड़ी की सुख थी। I had parents who used to take me everywhere in metro या ट्रेन में भी जाना होता तो वो लोग हर जगह मेरे साथ आते थे कि मेरे को कभी कुछ सीखना नहीं पड़ा। उसको मैं उस तरह से सोचने लगी एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है बाबा, देयर इज़ नो एज टू लर्न। सीखा ना मैंने अच्छे से, धीरे धीरे टाइम लेके, ऑफकोर्स बहुत वक्त लगा, अभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सीख ही रही हूँ ट्रेन का, तो बट ठीक है, देयर इज़ नो एज टू लर्न। और ऐसा उस चीज़ का एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लेट्स टेक इट इन द अपोजिट वे कि यार खुशकिस्मती है कि मुझे कभी ये सब इतना स्ट्रगल देखना नहीं पड़ा, बिकॉज मुंबई का होके लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रगल। कितना भी बोलो, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। मैं रोज़ चाहती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि वो कितना बड़ा स्ट्रगल है। ये नेक्स्ट इज़ रिलैक्स, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ये चीज़ ना मेरे साथ एक्चुअली सितंबर में बहुत हुई, सितंबर के आसपास। इट वॉज लाइक फेस्टिवल्स हो रहे थे, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, देर वर जस्ट टू मैनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग, ओके। एंड एट अ पॉइंट सब कुछ मैं साथ में करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को फेस्टिवल भी अटेंड करना है, मेरे को लोगों से भी मिलना है, मुझे वीडियो भी फिल्म करना है, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, मुझे होमवर्क भी कंप्लीट करना है। लाइक स्टॉप, लेट मी डू इट वन एट अ टाइम। सी सम पीपल आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग अनडाउटेडली, उनके पास 8 हाथ होते हैं, वो लोग 8 हाथों से 8 काम कर लेते हैं। बट फॉर मी आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है। लेट मी डू इट वन थिंग। तो इसीलिए एक दिन मैं सिर्फ पढ़ती थी, एक दिन मैं प्रॉपरली फेस्टिवल को देती थी कि भाई आज अगर गणेश चतुर्थी का मेन डे है, आई विल नॉट स्टडी, बिकॉज मुझे नहीं आ रहा है अपने टास्क को क्लब करना। तो वो चीज़ें मैंने डिस्कवर की ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके बाद आता है नवंबर का मंथ विच सेज प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। तो नवंबर में एक ऐसा वीक था जहाँ मुझे कॉलेज से ऑफ था, मुझे क्लासेस से ऑफ था, ना मुझे पढ़ाई थी। आई वॉज एट माई होम ओनली। दिवाली कंप्लीट हुई थी जस्ट, मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें ही की उस पूरे एक हफ्ते में। आई स्लेप्ट, आई एट गुड फूड, आई एक्सरसाइज्ड, आई वॉच्ड फोन, आई बिंज्ड ऑन मूवीज, आई स्क्रॉल्ड थ्रू सोशल मीडिया। आई डिड एवरीथिंग दैट वुड मेक मी हैप्पी। कुछ काम नहीं लिया अपने लिए। और सो मुझे लगा कि यार समटाइम्स इट्स ओके टू नॉट वर्क एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। इतना अच्छा लगा टू नॉट डू एनीथिंग। मतलब वो 5 स्टार है ना, eat 5 star and do nothing. I did not eat 5 star, but I literally did not do anything. And I realized that sometimes it's good. See, उस चीज़ की आदत डालना अच्छा नहीं है, वो भी मुझे पता है, because that will then develop laziness. But not always that you have to be very productive and work. It's okay to not do anything. Just sleep. मैं literally सोई हूँ, वो एक हफ्ता छूटे बोलो, मैं सच में सोई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सके, वो बात भी सच है। फिर उसके बाद है ट्राई न्यू थिंग्स, 20th पॉइंट। ट्राई न्यू थिंग्स इसलिए बिकॉज कॉलेज एरा में आने के बाद वाकई जैसे लोग बोलते हैं बहुत चीज़ें की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें की है। सोबो घूमी हूँ, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, क्लबिंग गई और अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लिया है, नए नए चीज़ों को मैंने देखा है, बॉलीवुड डे जैसी चीज़ें सेलिब्रेट की हैं, सज के गई हूँ, सवर के गई हूँ। Trying new things, just like a point, you know, where you should accept change. So you should from your end also give it a hand and try new things. Not all सब कुछ अच्छे से काम तो नहीं कर सकता, because there were a few things that I tried out which I felt like ये flop हो गया, but try करो, because every try you give will give you a new experience, that is for sure. इसके बाद हाल ही में दिसंबर का ही एक इंसिडेंट है which is your necessity might be others' luxury. This is true when I say that if you all just saw my recent videos, you all know that my parents gifted me a luxury bag, a purse. उसको ना मतलब देख के सच में मुझे रियलाइज़ हुआ योर नेसेसिटी कैन बी समवन्स लग्जरी. दिस इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड पॉइंट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन माई इंसिडेंट, बट उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये चीज़ एक्चुअली रियलाइज़ हुई कि क्या ना, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, दैट्स अ लग्जरी फॉर अस, कि इट्स अ लग्जरी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट बट आई रियली वांट इट. बट हो सकता है कि वो एक बार वो चीज़ मेरे पास आ जाए, मुझे वो नॉर्मल लगे, बट इट इज़ स्टिल अ लग्जरी फॉर समवन एल्स. Be thankful for what you have in life, because it's your necessity, it is a very normal thing to you, but honestly वो किसी और के लिए luxury भी हो सकती है. My second point is a recent, these are very recent, अभी आने वाले तो last के दिन तो बहुत recent है. 22nd point says know your future self, know what you want in life. उस चीज़ का आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए. जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि आई मैनिफेस्ट दिस, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी गुड हैबिट, यू शुड मैनिफेस्ट, बिकॉज हाल ही में वी आर डूइंग, आई वाज लाइक पर्टिकुलरली मेकिंग अ डिसीजन ऑन माई करियर दैट आई वांट टू गो फॉर, बिकॉज अभी 12th के मेरे बोर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आई हैव टू डिसाइड कि मुझे करना क्या है, कौन सी डिग्री के लिए जाना है, कौन से प्रोफेशन या इसमें जाना है. कॉमर्स लिया है मैंने, बट क्या करना है उसके ऊपर डिसीजन बनाना है. That time I realized it is so difficult, it is actually difficult but important to make a decision on what you want in life. मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरे को मालूम है कि अगले 20 साल तक मुझे क्या करना है, नहीं, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years प्लान भी नहीं करना है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे आगे क्या चाहिए लाइफ में. ओनली देन विल यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट टुडे. Next is consistency is the path to achievement. Now this is a very generalized point over 2024 के भाई ये चीज़ मुझे समझ आ गई है, कुछ हुआ, अच्छी चीज़ें, पर्टिकुलरली अच्छी चीज़ें जितनी हुई, consistency is the path to achievement. Be consistent with what you are doing. If you know कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, be consistent with it. मेरे स्टडीज़ के साथ भी ऐसा ही था. One thing, like even my mother makes this notice to me, is she does yoga. Now she has been doing yoga, and I might be wrong with the number, but I think she's doing it since 6 or 7 years. He's like, you need to be very consistent with yoga. तब जाके वो असर दिखाएगा. तुम बोलोगे मैंने 3-4 महीना किया and yoga is doing nothing to me, that will not work. You have to be very consistent with it. तब जाके end में उसका result दिखता है. Be consistent with whatever good you are up to. Last point, मेरा 24th point, be grateful always and always. जैसा जहाँ से मैंने शुरू किया था ये वीडियो, वहीं पे अभी एंड भी मैं उसी तरीके से करूँगी. For the good, for the bad, everything will end with a good reason, and be grateful for that every single thing. इतना अच्छा हुआ है 2024, I can count it, and even for the ones that I cannot count, but I know somewhere that yes, it has made me feel good. Be very very grateful for it. जैसे मैंने कभी बोला, realize what good you have, what luxury you have, and be thankful. Have that gratitude in you कि हाँ मुझे at least I saw the year 2024, and that too I saw it in such a good way. I'm very very grateful for that. To all those people who made it grateful to you, to God or whosoever it is, but just be grateful. And on
that note, I'm gonna end this video right here. I hope you guys enjoyed watching. It was so much of chit chat, but दिल से जो बात निकली वो आप लोगों के साथ शेयर की। 2024 में मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी हुई हैं, बट जस्ट सो मच एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प मी इन माई अपकमिंग ईयर्स एंड मतलब बहुत कुछ सीखने मिला। बेसिकली इन समरी बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो कि हाँ बस यही सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को हम मन में याद रख के 2025 में चलेंगे मेरी तरह, तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दिवा डायरीज। आई एम गोना डायरेक्टली सी यू इन अ लॉन्ग फॉर्मेट इन 2025 now. Oh my god, it's gonna be very very exciting. I'm so happy. Thank you for all the love and support that you've shown in 2024 and continue to do so. फिर से रिपीट करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिवा डायरीज। आई एम गोना सी यू गाइस रियली सून विद अपकमिंग वीडियोस। Until then,